Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the chapter rational numbers, right? And in today's session we are going to discuss the new chapter number 10 of NCERT book, that is practical geometry. Okay, so this chapter is going to be very interesting. So keep watching the videos related to this chapter. Okay, so let's start today's session. So as we know that in 6th standard we have learned how to draw a line segment of particular length and perpendicular line to a given length to a given line, and also we have learned how to draw angle of some specific measurement like 60 degree, 120 degree, 30 degree and 90 degree. Then also we have learned how to draw angle bisector of a given angle. Okay, so this much we have learned in 6th standard. And now in this standard 7 we are going to learn how to draw parallel lines and some type of triangles. Okay, so let's see the first construction. What is this? Construction of a line parallel to a given line through a point not on the line. Okay, so the first construction is construction of a line parallel to a given line through a point not on the line. So this construction is related to lines and angles. In lines and angles chapter we have learned if we have given two parallel lines and a transversal intersects them, then the alternate interior angles are equal. Okay, suppose if we have two parallel lines like this is a L and this is M, and these lines are intersected by a transversal, suppose it's T. So these angles are alternate interior angles, so these will be equal. In case of two parallel lines intersected by a transversal, alternate interior angles are equal. Okay, if we take it vice versa, उल्टा अगर इसका देखें, अगर दो लाइन्स है ओके और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं अगर वो इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये जो लाइन्स है जिनके बीच में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी. तो यही कॉन्सेप्ट इस कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक गिवन लाइन है, सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज एम, तो इस गिवन लाइन के पैरेलल हमें लाइन एम को कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ट्रांसवर्सल चाहिए. इस एंगल के इक्वली हम यहाँ पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी हेल्प से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स सी दिस कंस्ट्रक्शन, हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट. Let's suppose we have a line L. So with the help of scale you have to draw a line like this and name this line as line L. Okay, now take a point outside this line. Suppose the point is here and its name is A. क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपका स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन को ड्रॉ करना है और किसके थ्रू, एक थ्रू अ पॉइंट दैट नॉट ऑन द लाइन, वो एक पॉइंट से पास होते हुए पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है इस गिवन लाइन के पैरेलल जो कि इस लाइन पर नहीं है. इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया और एक पॉइंट लिया ए दैट इज आउटसाइड ऑफ दिस लाइन. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप व्हाट वी डू, we take any point on this line anywhere. Okay, इस लाइन पर हमें कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है. सपोज दिस पॉइंट इज B. Now join A to B with the help of scale like this. Okay, अब देखिए ये गिवन लाइन हो गई और अगर हम इसे देखें तो ये लाइन आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई. अगर इस लाइन के पैरेलल हमें ए से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उन दोनों लाइन के लिए क्या, एक ट्रांसवर्सल हो गया. अब हमें क्या करना है, ये जो बी एंगल है, एंगल बी है, उसी के इक्वल ए पर कंस्ट्रक्ट करना है. मीन्स इस एंगल बी की हमें कॉपी यहाँ पर करनी है ऑल्टरनेट पोजीशन पर. तो उसके लिए हमें क्या करना है,
एक कन्वीनियंट रेडियस राउंडर में एडजस्ट करना है और बी को सेंटर लेते हुए इस तरीके से एक आर्क लगाना है। टेकिंग बी एज सेंटर, मेक एन आर्क विच is cutting AB at this point and L at this point. Suppose we name these point as, suppose this point is C and this point is D. Okay? Convenient radius आपको राउंडर में एडजस्ट करनी है and taking B as center you have to make an arc such that it will cut AB at point C and L at point D. Okay? Now with the same radius we have to draw an arc through point A. Okay, so through A you have to draw an arc of same radius like this. Okay, we are going to construct the copy of this angle B at point A. Okay, so for this what we do, we take in rounder the same radius as we have taken to draw here the arc. Okay, so we have made the arc of same radius. Now in rounder we have to take this distance C to D. So for this you have to put pointer tip at point D and pencil tip at point C. Okay, ये देखिए राउंडर में इतना डिस्टेंस है जो कि C और D पॉइंट के बीच में है। ठीक है, राउंडर में आपको रेडियस कितना लेना है, C टू D पॉइंट, C और D के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही हमें राउंडर में रेडियस लेना है। अब क्या करना है, सपोज ये आर्क इस AB को जहाँ इंटरसेक्ट करी है उस पॉइंट को नेम देना है E। ओके, E पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है इस तरीके से। पॉइंट फ्रॉम पॉइंट E यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस। ये आर्क इस गिवन आर्क को जो हमने पहले ड्रॉ की थी उस आर्क को जहाँ इंटरसेक्ट करी है उस पॉइंट को नेम दे दीजिए सपोज F। ओके, नाउ ज्वाइन F एंड A विद द हेल्प ऑफ रूलर। Okay, so we are getting a line through point A and you can see this line is parallel to L. Name this line as M. Okay, if we measure the distance between these two lines, see yes, it is here 14.5, here also 14.5, here also it's 14.5, means the distance between these two parallel lines is same. Okay, तो क्या करना है, जब भी आपको एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, उस लाइन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ कि जिस लाइन के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, और एक पॉइंट जिसके थ्रू पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है उसको ले लेना है कहीं भी आउटसाइड ऑफ दिस लाइन। हमने यहाँ लिया है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ओके, सो आपने पॉइंट लिया, फिर आपको उस लाइन पर एक पॉइंट चूज़ करना है अपनी मर्जी से और उसको उस पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक कन्वीनियंट रेडियस का बी पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाना है। ये आर्क ए बी को सी पॉइंट पे कट कर रहा है और लाइन एल को डी पॉइंट पे कट कर रहा है। उसी रेडियस से आपको ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाना है। ठीक है, जो ए बी को ई पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके, नाउ उसके बाद आपको क्या लेना है, राउंडर में रेडियस जो लेनी है वो किसके, सी डी के इक्वल लेनी है। मीन्स आपको पॉइंटर की टिप डी पर रखनी है और पेंसिल या स्केच की टिप यहाँ पर सी पॉइंट पर रखनी है। इतना डिस्टेंस आपको राउंडर में लेना है। उसी रेडियस से आपको इस ई पॉइंट से आर्क लगाना है। जहाँ ये आर्क इस
प्रीवियस आर्क को कट करेगी, उस पॉइंट को आपको ए पॉइंट से ज्वाइन करा देना है. ओके, सो you have got a line that is parallel to given line through a point that is not on this line. Okay, so this is how you have to construct a line parallel to a given line through a point that is not on it. तो आप देखिए यहाँ पर हमने कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है इस कंस्ट्रक्शन में. क्या किया है कि लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमने क्या इस एंगल के इक्वल यहाँ पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर एंगल कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी हेल्प से आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि किसके गिवन लाइन के पैरेलल आ रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन of parallel lines. Okay, so let's see the first question. Draw a line, say AB, take a point C outside it, through C draw a line parallel to AB using ruler and compasses only. Okay, so इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक लाइन AB ड्रॉ करनी है और एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन लेना है. ओके, मतलब एक पॉइंट लाइन पर नहीं होना चाहिए, लाइन के बाहर, ऊपर नीचे आप किसी भी जगह ले सकते हैं और उस पॉइंट से पास होते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि लाइन ए बी के पैरेलल होगी. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ रूलर लाइक दिस. एज यू नो, line has no any end point. Okay, so we denote it by 2 arrows in both direction, means we can extend this line in both direction. Okay, so this line is AB and now we have to take a point outside of this line, means आप यहाँ पर ले लीजिए point C. ओके, जनरली हम क्या इस लाइन के ऊपर ही लेते हैं, तो C पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस लाइन ए बी पर हमें कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है. सपोज आई हैव टेकन हियर एंड इट्स नेम इज B. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज we have to join B to C with the help of ruler. Okay, now in rounder we have to take a convenient radius, suppose this much. Okay, convenient radius लेना है आपको, आप पर डिपेंड करता है कि पॉइंटर की टिप और पेंसिल की टिप में आप कितना गैप लेते हैं. ओके, सो कन्वीनियंट रेडियस हमने इस कंपास में एडजस्ट कर लिए. नाउ टेकिंग B एज सेंटर वी हैव टू मेक एन आर्क दैट विल कट दिस लाइन सेगमेंट BC एज वेल एज टू दिस लाइन AB. सपोज ऑन लाइन AB this arc cuts at this point, its name is D and this point is E. ओके, हमें इस कन्वीनियंट रेडियस से क्या करना है, B को सेंटर लेना है और आर्क इस तरीके से लगानी है कि आर्क BC लाइन सेगमेंट को भी कट करे और लाइन AB को भी कट करे. AB को जहाँ कट कर रही है उसको, उस पॉइंट को नेम दे दिया हमने D और BC को जहाँ पर ये आर्क कट करी उस पॉइंट को नेम दिया हमने E. इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए हमने जितना रेडियस लिया था उतना ही रेडियस आपको मेंटेन करना है और C को सेंटर लेते हुए एक आर्क इस तरीके से लगाना है. सपोज ये आर्क BC लाइन सेगमेंट को F पॉइंट पर कट कर रही है. ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पॉइंटर की टिप इस पॉइंट D पर रखनी है और पेंसिल की टिप को पॉइंट E तक एडजस्ट करना है इस तरीके से. मीन्स राउंडर में हमें D to E डिस्टेंस को मेंटेन करना है. ओके, अब इसी रेडियस को आप क्या करना है, F को सेंटर लेते हुए एक आर्क इस तरीके से लगाना है. टेकिंग F एज सेंटर यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस. ओके, नाउ ये आर्क, इस गिवन आर्क को जहाँ इंटरसेक्ट करी उस पॉइंट को सपोज नेम दिया है हमने G. नाउ ज्वाइन G टू पॉइंट C विद द हेल्प ऑफ रूलर. Like this. So name this line suppose M.
Now you can see line M is parallel to line AB. You can check this by measuring the distance between these two lines. See, here the distance between these two lines is 5.2. Here is also the distance between these two lines is 5.2 approx. And here also you can see. So it means these two lines are parallel. Okay. Now let's move to the question number 2. Draw a line L. Draw a perpendicular to L at any point on L. On this perpendicular, choose a point X 4 cm away from L. Through X, draw a line M parallel to L. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक लाइन L ड्रॉ करनी है और उस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर पर आपको लाइन L से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट X लेना है और उस X से पास होते हुए आपको एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो लाइन L के पैरेलल होगी. ओके, सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन L विद द हेल्प ऑफ रूलर लाइक दिस. ओके, सो this is the line L. Now at any point on this line we have to draw a perpendicular. Suppose at this point we are going to draw perpendiculars. Let's give its name as M. Okay, so for constructing perpendicular, what we do, we take a convenient radius in this compass and taking M as center, draw a semicircle like this. ओके, अब आपको कंपास में पॉइंटर टिप और पेंसिल की टिप के बीच की डिस्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा लेना है इस तरीके से. ओके, जहाँ पर ये सेमी सर्कल इस लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से आपको आर्क्स ड्रॉ करनी है. ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट से आपको आर्क ड्रॉ करनी है. ये दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को एम से ज्वाइन करा दीजिए. इस तरीके से. तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर. ओके, यू कैन मेजर दिस एंगल बाय प्रोटेक्टर टू. सी, दिस इज एग्जैक्टली 90 degree angle. So this line is perpendicular to this line L. Now on this perpendicular we have to choose a point X that is 4 centimeter away. ओके, तो इस लाइन से हमें 4 सेंटीमीटर, तो देखिए अगर हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो स्केल की हेल्प से इस लाइन से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है. मतलब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपका ये होगा 1 to 4. ओके, so this point is your X, that is 4 centimeter away from this line. Okay, so as we have to draw through this point X a parallel line. Okay, तो parallel line को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को आउटसाइडर पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं. तो आप देख रहे हैं M यहाँ पर ऑलरेडी टेकन है, M पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है और X पॉइंट भी क्या है, आउटसाइड ऑफ दिस लाइन है और X को M से हमने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है. तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसवर्सल मिल गई MX. ओके, और ये लाइन L है. अब हमें दूसरी पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि M को सेंटर लेते हुए कन्वीनियंट रेडियस का एक आर्क लगाना था. तो ऑलरेडी यहाँ पर सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है तो आपको आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया है एक गिवन रेडियस का, उसी रेडियस का आपको X पॉइंट से एक आर्क लगाना है इस तरीके से. ओके, नाउ यू हैव टू एडजस्ट द डिस्टेंस इन दिस कंपास दिस मच. ओके, अब कंपास में आपको अगर हम इस पॉइंट को सपोज नेम देते हैं A एंड दिस पॉइंट इज B. ओके, सो इन राउंडर इन कंपास यू हैव टू एडजस्ट दिस डिस्टेंस AB एज रेडियस. ओके, नाउ
we have to make an arc from this point like this. Okay, ये आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी उस पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है. अब इस आर्क को ज्वाइन करा दीजिए आप एक्स पॉइंट से. Okay, so this is the parallel line M through point X. Okay, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन L को ड्रॉ किया रूलर की हेल्प से. उसके बाद परपेंडिकुलर MX ड्रॉ किया इस लाइन पर एट पॉइंट M. ओके, और x पॉइंट 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, लाइन L से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट x लिया और इस x से पास होते हुए पैरेलल लाइन M को ड्रॉ किया. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. लेट L बी अ लाइन एंड P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L. थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L. नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L. चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M. थ्रू R draw a line parallel to PQ. Let this meet L at S. So what shape do the two sets of parallel lines enclose? Okay, करना है. सबसे पहले आपको एक लाइन L ड्रॉ करनी है with the help of ruler. Its name is L. Now we have to take a point P that is not on this line. Suppose P point is here. Now through this point P we have to draw a line parallel to line L. Okay, so choose any point on this line L, suppose here. So this point is suppose A. Now join P to A. Okay, then you have to take compass and a convenient radius. At point A make an arc like this. Okay, and of same radius you have to make an arc at point A like this. Okay, now in compass you have to adjust the radius from this point to this, because यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल की कॉपी यहाँ पर बना रहे हैं. मीन्स इसके इक्वल एक एंगल हम यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो सेम रेडियस का आपको इन दोनों पॉइंट से आर्क लगाना है. ओके, उसके बाद राउंडर में इस डिस्टेंस को एडजस्ट करना है और भी इस पॉइंट से आपको आर्क लगाना है. ओके, ये आर्क इस ऑलरेडी ड्रॉन आर्क को जहाँ कट करी है उस पॉइंट को P से ज्वाइन करा देना है. So this is the line M parallel to line L. Okay, now we have to take a point on this line L and its name is Q. Suppose the point is here. This point is Q. Now join P to Q as said in the question. Okay, now we have to take other point R on M. Suppose here I have taken point R here. Okay, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको लाइन L लेनी है और एक पॉइंट P लेना है. उस P पॉइंट से आपको एक लाइन M पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो वो हमने ड्रॉ कर ली. ओके, उसके बाद आपको एक दूसरा पॉइंट लेना है जो कि लाइन L पर होगा और उसका नेम क्या है, Q. P को Q से ज्वाइन कराना है, करा दिया आपने. ओके, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आपको लेना है लाइन M पर कहीं पर भी. तो सपोज हमने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया. ओके, तो अब क्या करना है, R से पास होते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो PQ के पैरेलल होगी. ओके, तो PQ के पैरेलल होने के लिए हमें क्या करना है, कंपास में एक कन्वीनियंट रेडियस को एडजस्ट करना है. सो टेकिंग P एज सेंटर वी हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस विच विल कट दिस लाइन सेगमेंट PQ and
as well as this line M. Okay, of same radius we have to make an arc through point R like this. Okay, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, लाइन PQ के पैरेलल हमें एक लाइन R से ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करना है. तो देखिए एंगल QPR के इक्वल हमें R पर एक ऑल्टरनेट पोजीशन पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, एक आर्क लिया कन्वीनियंट रेडियस का, उसके बाद उसी सेम रेडियस का हमने R से एक आर्क लगाया इस तरीके से. ओके, अब आपको कंपास में इस एंगल को एडजस्ट करना है, मीन्स कंपास में ये रेडियस लेनी है. ओके, और इस रेडियस का आपको आर्क यहाँ से लगाना है. नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट टू R. So this is the line parallel to PQ. ओके, और ये लाइन L को जहाँ पर कट करिए उस पॉइंट को नेम देना है S. ओके, सो PQ इज पैरेलल टू RS. अब क्वेश्चन में आपको और भी एक चीज़ कहा गया है कि इन दोनों सेट पैरेलल सेट से कौन सा फिगर एनक्लोज हो रहा है. मीन्स PQ इज पैरेलल टू RS एंड L इज पैरेलल टू M. मीन्स ऑपोजिट साइड, ये इसके पैरेलल है और PQ RS के पैरेलल है. तो ये पैरेलल लाइंस का सेट कौन सा फिगर एनक्लोज कर रहा है. तो आपको पता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. तो PQSR आपका क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम है. ओके, सो द फिगर एनक्लोज्ड बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेलल लाइन इज हियर पैरेललोग्राम. Okay, so that's all about today's session in which we have discussed exercise 10.1, right? If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the constructions of triangles, okay, and the exercises part. Till then, keep watching my channel. Thank you.